गुड इवनिंग ऑल। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरे सारे सीनियर्स को और मेरे सारे मेंटर्स टीचर्स को। वी जस्ट वेटिंग, सम ऑफ आवर टीचर्स विल ज्वाइन अस। Hi, Dr. Yashwant. हाय सर, हाउ आर यू सर? All good, all good. How are you? हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। Yeah, I wish you all happy Guru Purnima. ऑल स्टूडेंट्स वांट टू लिसन यू सर। सर से समथिंग अबाउट द 3rd of August protest. Yeah, I think two things, 2 point of views. First, I think the legal route, I strongly recommend it because if something comes from the court, it's like a fine print. Nobody can easily tamper that. Otherwise, governments will keep coming, governments will keep going. They will try to implement new policies. Even if our demands are met, अगला गवर्नमेंट फिर से उसे मैनिपुलेट कर सकता है. बट इफ इट इज अ जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स टू मैनिपुलेट. सो स्ट्रांगली वॉचिंग फॉर द लीगल रूट फॉर ट्रांसपेरेंसी. सेकेंड, हाँ, इस बार जो मैसअप हुआ था एग्जाम में, दैट अथॉरिटीज डू हैव लिटिल बिट इन देयर हैंड कि हाँ कुछ कर सकते हैं इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स. सो होप की प्रोटेस्ट से उन पे थोड़ा बहुत दबाव बन सकता है एंड दे माइट सॉफ्टन अ बिट. एटलीस्ट जो एग्जाम मैसअप हुआ था उसके वजह से कट ऑफ या कुछ ग्रेस मार्क्स ऐड हो जाया था तो वी अचीव समथिंग. करेक्ट और सर। जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्वेश्चन और आंसर की रिलीज होना चाहिए, आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इट शुड कम फ्रॉम द कोर्ट. सो सर जैसे बता रहे हैं मोस्टली, एक मिनट, आशीष सर आ गए हैं। हाय सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। यू आर द वन ऑफ द लीजेंडर। सबने कहीं ना कहीं आपको देखा ही है, पढ़ा ही है कहीं ना कहीं से। Thank you to everyone, and I'm very happy to be here with another great faculty. How are you, sir? ऑल गुड सर, ऑल गुड. I think sir is one of the genuine souls who are supporting from the day one. He was messaging Correct. and posting. He came from Bangalore. मैं क्या Bangalore से यहाँ लोग दिल्ली से गौतम नगर से संदीप नहीं सर गए. भी आ गए। हैप्पी गुरु अच्छा पूर्णिमा संदीप सर। हाय सर. Happy Guru Purnima, sir. One Everyone. of the smart teacher in our field, the Sandeep sir with a good पंजाबी brain. पंजाबी सारे स्मार्ट होते हैं भाई. Arey nahi, sir. It's my pleasure to be here. But I think, first of all, good evening, everyone. Sir, मैंने अभी join किया, so I don't know the context. नहीं अभी अभी स्टार्ट किया. अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं. Okay, sir. Sir, please, Sandeep sir. Sir, the only reason for me joining was to just multiple things. First of all, the solidarity with the FMG students. It is important. I'll be saying in English because a few people may not Yeah, be very please sir, well versed. please. So first thing is, it is this FMG exam which happened. The pass percentage is abnormally low, and a lot of students are stuck between 145 to 149. So among the different things that we are doing, first thing is the legal route which is being taken by Dr. Jaswant, by Ashish sir, and all the other players. There are many other people who are supporting. So I think legal route, as Santosh sir also rightly said, that is the perfect and the most foolproof. It is the only problem is it is going to take its own time. So legal route, yes, we have to pursue, and that is the more favorable route, because once we get legal backing, it becomes very easy for things to fall into place. Second thing is the immediate thing. Immediate thing kya hai ki we can request NBE and we can request the Honorable Health Ministry and the National Medical Council, because questions, video-based questions were announced in a screening exam for the first time without any notification. That consideration has to be taken into account, because sir, couple of years back Supreme Court का एक judgment था regarding NEET super speciality. NEET SS का pattern overnight change किया गया था. तो Supreme Court gave the directive to National Board of Examination saying very clearly कि अगर किसी भी exam का pattern change होगा, if the pattern has to be changed, students have to be notified beforehand, and that was for entrance exam. I think Santosh sir also knows about it. Yeah. And
This is a licensing exam. This is not a PG or so. It is all the more important that if there is a change happening, we need more doctors in the country. If a change is happening, it should be notified. Like NEET PG, they have notified that number of questions will be this, video questions will be added. So because it was not done, so irrespective of how many they got right or how many they got wrong, one time consideration of maybe lowering the pass percentage, lowering maybe including the वो एग्जैक्ट क्या होगा दैट इज अप टू द अथॉरिटीज बट टू टेक अ लीनियंट वन टाइम व्यू इज व्हाट वी आर पुशिंग फॉर दैट इज द इमीडिएट थिंग एंड थर्ड थिंग इज सर आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी बिकॉज एग्जैक्ट आंसर की क्या है जब व्हेन यूपीएससी का इट कैन बी रिलीज ठीक फॉर पीजी एंट्रेंस वी अंडरस्टैंड बट फॉर अ स्क्रीनिंग एग्जाम यूपीएससी सीएमएस फॉर एग्जांपल दे रिलीज आंसर की व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एफएमजी एग्जाम because there has been a lot of noise over the years, so I think a bit of transparency we all need. So that is what has been told to me. That is what I believe in, and that is why we are all over here. So Great. we'll be asking for more, inputs from everyone, and all of you, sirs, please comment on this. आशीष सर, Sir, you're on Voice- mute, I guess. वॉइस you- नहीं आ रही सर आपका. So the day exam happened, we noticed that there is some kind of, I don't know, some कहते हैं ना thing which is not right. The exam में center में facilities were so bad. मतलब the afternoon में बच्चा कह रहा है सर बैठने जा रहा. We have to pour water on our Yes. head. That's the first thing we noticed कि for taking almost 7,000 rupees, they're not giving any facilities. आंसर की नहीं आती, that is already a very poor कहते हैं ना excuse कि यार हम नहीं दे चाहते, क्वेश्चन रिवील नहीं हो रहे. Then they were not even willing to like consider कि भाई ये पेपर में वीडियो क्वेश्चन कैसे आ गए. Same day we noticed कि the facilities were bad and we sent a mail to NB and I went personally on 3rd of July कि students were suffering plus they had video questions which are very lengthy. It cannot be solved. So I said कि as a like faculty, I feel that video question need more time. So either you should have given more time or inform so student can prepare. So that's why we started raising voice, and when the result came, that justified everything कि they were actually having this thing. I think maybe they wanted everyone to suffer. पहले exam center खराब बना दो, पानी ना दो पीने को, फिर result खराब करा दो. So it looked like not like a chance. It looked like a deliberate attempt to traumatize the students, penalize them for going abroad. In fact, the NMC official, their verdict था आप लोग जाते क्यों बाहर? Why you people go abroad? And we said कि obviously there are not enough seats. कहते then you should give exam again. How many times they should give the exam? So the whole policy, like they are anti-FMG. That's what I feel. The entire medical community in this country is anti-FMG. They don't want FMGs to succeed. They should not be given enough, like opportunities to work. Although they have proved there are so many faculty who are teaching with us. There are FMGs. There are hospital directors, HOD consultants who are FMGs. So saying that they are not, like good doctors, I think it's like stereotyping the entire community. So I think this is time FMGs and we IMGs. I think I can say that IMGs are the ones who actually can see what is happening there. There's a discrimination going on, and it's a proper institutional discrimination at all level. NMC, NB, I think State Medical Council, सब मिलके FMGs को बचाते हैं. नीचे गिरा दो, इतना कर दो कि कोई जाए ना. कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर फैमिली किड शुड नॉट इवन थिंक कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए. So I personally believe that the student's decision to pursue MBBS abroad is an economical decision and it is not a merit-based decision. So we should not be judgmental saying that they have lower merit, that's why they went abroad. It's purely an economical decision. अगर 2-3 करोड़ वो फेंक सकते थे तो they could have done it here. Because they chose little wisely. They did not want to create a burden, financial burden to their family. They went abroad. So this judgmental attitude or institutional bias should be questioned, should be challenged. Similar things used to happen in the past about DNB versus MD. Today, it's still an economical decision for most of the students why to pay 15-20 lakhs or crores for a private institution. Instead, we go into DNB. Slowly, that bias is settling down. But still, IMG versus FMG bias is still persistent. So that needs to be addressed going forward, not just through this protest, but that should also be one of the agenda for the forum. No one Abhi should sir. be.
it is a form of untouchability being introduced in medical field, saying that okay, you are FMG, so you are inferior to me no matter how much you score in exams, how well you perform clinically on the patients. I will still judge you inferior. That should be certainly always taken seriously. Second, this exam, I strongly believe the grace marks should be considered, or a lowering of cutoff should be considered, not only from the perspective that video-based questions were introduced without a prior notice, also because of that pathetic facilities. I mean, there are clinical studies which show that at such ambient temperatures, the cognitive abilities decline. So you have made students' ability to think lower, and then you have judged them, and then you have decided that okay, these people are not fit to qualify. If you had provided ideal condition, I'm still sure at least few more students would have passed. So that should be another ground for demanding the grace marks or lowering the cutoff. Plus the video-based questions and not appropriately compensating for the time. And we have a justification that for the NEET PG, they have already given more time, number of questions lowered. So that itself shows that board is aware that to address such kind of questions, more time is required. But that privilege is only extended to NEET PG students and not for the FMG students. So that's something that we should be pushing through the protest. But as I told earlier also, I strongly vouch for the legal route, because we can easily get the transparency forced upon the board through the court. And once that is done, then all the good students who are genuinely preparing and they're doing their best should be able to sail through. Only one request to the forum is that we should force the board to constitute an authority or a team to judge the standard of questions. That's true. Because if everything is sorted, even transparency is achieved, then they will try to play the tricks on the standard of questions. Because the medical information is infinite, they can ask anything from anywhere. So if today I decide to fail the HOD of medicine of a medical college or AIMS, I can create such question papers. That's true. Or somebody can create a question paper on which I can fail. Having 15 years into practice, I can still fail because information is infinite. So then there should be some standardization to understand what level the questions should be set. And ideally, it is like if you have some data from IMGs, okay, they are performing at this level, then set the questions at that level. So you need to have some standardization instituted. That should also be a demand, according to me. That's true. अभी सर नए एजुकेशन मिनिस्ट्री का आपने अगर स्टेटमेंट सुना हो तो उन्होंने कहा कि 90% स्टूडेंट नीट एग्जाम फेल करके एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं। अब कौन बताए मेरे देश की जो है मिनिस्ट्री को कि बिना नीट के 2019 के बाद में एडमिशन ही बंद हो गए हैं। आप कौन से डायलेमा में जी रहे हो कि आपको ये पता ही नहीं है। एक्चुअली में हम सब लोगों को बेसिकली I invited all teachers to join these sessions because the student listen more about the teachers, like this protest we can go there or not. So this is also very important. What you suggest, sir? The student need to go there for this protest or not? See, the success of any protest depends on the hype we can create and the numbers we can show. And the hype is directly proportionate to the numbers that show up. Otherwise, see, as such, medical community is a very weak community. We are not capable to influence anything on authorities. They always act like boss. So until and unless we are able to generate footfall, we will not even create a small impact. So we need numbers. CJP succeeded because they had millions of number and thousands sitting there. Yeah. And only then Sonam Wangchuk joined. He was not initially with them. But he joined because he thought it's a just cause, and I think they will succeed. हमारे में क्या है, that day, you know what happened? Dr. Santosh might know. We were 100 something protesters and 200 plus policemen. And they told us कि we are more than you people. मतलब आपके protest से ज़्यादा तो हम पुलिस वाले हैं. So that was a very, you know, like humiliating experience कि NB वाले डर गए. They were afraid. They put barricading. They had 10 policemen to detain us, and there were still no students there to, you know, like come for protest. So I think that made our case very weak. So that's why we need to show the unity. At least 5,000-6,000 people should gather and show these FMGs are one community and they are together to fight for their rights. बिना कहते ना बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को. तो आपको लग रहा सरकार आपको दूध पिलाएगी. Already the government is anti FMG. That's clear from all their policies from the 2002.
So they are not going to give you any kind of relaxation if you don't fight for it. बिना लड़े आजादी नहीं मिलती भाई. भगत सिंह मरे हैं, कितने सुभाष चंद्र बोसों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके आजादी मिली है. आप चाहते हो बैठ के कीबोर्ड पे एक मैसेज कर दें, वन मैसेज, आई सपोर्ट, बट ग्राउंड लेवल सपोर्ट मैटर्स. The faculties who are here now, they are the ones who will actually be giving that कि we are with you. मैसेज करना, एक पोस्ट डालना बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है. वी कैन गेट फ्रॉम आई थिंक एनी, ठीक है, अभी शायद शाहरुख खान से भी करेंगे रिक्वेस्ट, डाल देगा सपोर्ट एफएमजी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? The day they don't come on the ground to fight for us, they are not going to, like, do anything. Till Sonam Wangchu was not sitting on the hunger strike, they were not even paying attention. कोई ना कोई को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी. Without sacrifice, you are never getting this. हमारे सोनम वांगचुक तो आशीष सर हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं फास्टिंग की. सर आप बन जाओ, हम हंगर स्ट्राइक करेंगे सर. हम बिल्कुल भाई, तुम बोलो, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, आपके साथ साथ हम भी सीख लेंगे कि थोड़ा सा हंगर स्ट्राइक कैसे करनी है. बिल्कुल भाई, मैं तो रेडी हूँ. I request you all, because all the faculties are here. The only one reason I'm telling you, all the teacher and all institute are with you. Don't think like no one is coming, no one is like doing. The Gautam Nagar and Saket, all the institute who's running right now, the batches, they all are coming with you. सबसे मेरी बात हो गई है, एंड इवन आई विजिटेड पर्सनली टू द ऑल इंस्टीट्यूट. सभी बच्चों को मैंने मैसेज दे दिया. पर मैं आपको बता दूं कि आपको ये लग रहा होगा कि वी आर जस्ट अ फ्रेशर, व्हाई वी कैन ज्वाइन दिस, बट आई एम टेलिंग यू, नेवर इज द फ्रेशर थिंग. आप जो अभी इनके साथ हुआ, इससे बुरा आपके साथ हो सकता है. अगर इस बार अगर आप लोगों ने यूनिटी नहीं दिखाई, तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके साथ में ये लोग क्या कर सकते हैं. डोंट बी अफ्रेड, डोंट थिंक लाइक कि वो हमारा रोल नंबर देख लेंगे. कुछ भी नहीं होता है. नो वंस जज फ्रॉम द रोल नंबर और समथिंग. इससे पहले होता आ रहा है, अब हमें उसको स्टॉप करना है कि हमारे रोल नंबर ना लिए जाए. अभी मैं आपको रिसेंटली एपिसोड बता दूं, जो भी बच्चा पासिंग सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, उस बच्चे से वहां पे रैंक 5 रेटिंग कराई जा रही है. 5 रेटिंग करके आपको अपना रोल नंबर डालना है, अगर आप रेटिंग नहीं कर रहे तो. पर मैं आई एम टेलिंग यू गाइज, व्हाई यू आर डूइंग दिस. आपको करने की जरूरत नहीं है. कोई भी आपसे फोर्स करके रेटिंग नहीं ले सकता है. आपको रेटिंग नहीं देनी है. अगर आप रेटिंग दे रहे हो तो आप अपने दोस्तों यारों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि देखो सब लोग तो सेटिस्फाइड थे, एग्जाम पेपर अच्छा था, एग्जाम सेंटर अच्छा था, तो मेरे पास में अगर एक रिव्यू रहेगा कि मैंने 4000 बच्चों के रिव्यू लिए और 4000 बच्चों ने कहा कि इट्स वेरी गुड, जो लोग पास हो गए, तो वो लोग उसी चीज को एजेंडा बना के आप लोगों के सामने प्रोटेक्ट करेंगे. पर आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस बार नहीं आए तो मैं कह रहा हूं, मैं ही क्या, कोई टीचर आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा जिंदगी भर. और फिर आप कोचिंगों को, टीचरों को गाली देते रहना जिंदगी भर, क्योंकि दिस इज द ओनली लास्ट चांस कि आप लोगों के लिए सारे टीचर और सारे इंस्टीट्यूट रेडी हुए हैं. इसके बाद में कभी भी कोई टीचर नहीं आएगा, कभी कोई इंस्टीट्यूट रेडी नहीं होगा. उनको पता है कि भाई जब आप लोग ही अवेयर नहीं हो, आप ही लोग अपनी फाइट नहीं लड़ सकते, तो नो वन कैन डू फॉर यू. Sir, I think it's a very valid point raised by Dr. Jaswant that even if you are a fresher, अगर आप पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं और अभी आप इंडिया आए हैं कुछ महीने पहले, if you are in or around Delhi, that you visit the protest or you try to support in whatever best way possible. Because I make this, this joke. I used to make this joke in my class when I was teaching development milestone कि language milestone पढ़ाते हुए I used to say कि देखो audio question नहीं आएगा, don't worry about it. But अब after this exam we are not sure. We are not sure क्योंकि there is no accountability, there is no standardization, there is nothing, in the prospectus, and they are not totally following. They don't follow the weightage every year for each subject which they publish. That is a known fact. उसको फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि integrated है question and weightage can go here and there. But if we do not ask for accountability and standardization of the exam, it will become very difficult for us, because there is no end to, as Santosh sir said, कितना मुश्किल बनाना चाहें. They can put all 50 questions of medicine in such a way that even medicine HOD of AIMS cannot solve them. So we have to just put an end to it. See, one more like a very sad observation is that those who have cleared the FMGA this time, they are in a very sweet time, because internship is not started yet. They are free. They should show up and they should stand up for their fraternity. But unfortunately, in last protest, there were hardly 1 or 2 people who have cleared had come. Otherwise, it's like only those who could not make, they are the ones who are fighting for their rights. That's true. Then they're not realizing that
just passing the FMG and having the certificate is not the end to their problems. Collectively, they have to fight for their rights, because once they get into internship, there will still be discrimination. That's true. That's true. So until and unless they are working as unity, and when I say unity, I'm not even saying FMG circle as unity. Like, we doctors, medical fraternity has to be united. There should be no IMG versus FMG, FMG passed versus still not cleared. No, I think all should stand together. So it's a urge to all the students who have cleared FMG this time and previously. If you're free, if you're in and around Delhi, please show up on 3rd, because we need to build the strength. That's true. That's true. So I think we will all keep raising our voice, and I think we faculties are talking to ourselves also. Like, I know Sandeep sir, I know Santosh sir, so we are talking to all other faculties also. Ki at least take some few hours. We are not saying ki pura din khade rehna hai. Just 1 hour, be there, show their presence, because the students need to know that actually we love them. They might sometimes they pretend, but we actually love them. We are not like stupid people who are actors who just want to, नहीं यार भाई आपसे प्यारे बच्चों तभी यहाँ बैठे हैं. सर को और बाकी जितने भी फैकल्टी यहाँ बैठे हैं, we all actually love you and we are whatever because of you. The love, the respect you have given made us. Otherwise कौन लेता है यार? यहाँ पे हजारों मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं. They could have taken anyone as a faculty, but you chose us. संदीप सर है, संतोष सर है, मैं हूँ. We are कहते ना indebted to you and we'll always be there for you at any moment there is a need. Thank you so much, sir, for coming this session. And I request, please, you also can share to your channel or somewhere, like, to connect the students. Please join this protest on 3rd of August, because this protest only for student, not for us. We are only going to support you only because of we know we go on through this kind of all such kind of things. That's why we are taking much pain. This sir also already said. एंड पेपर का पैटर्न डे बाय डे चेंज होगा. अगर इस बार हमने इस पेपर को चेंज करने के लिए अगर हमने मेहनत नहीं की तो कभी भी चेंज नहीं होगा. फिर आप सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम दे लो तो भी आपको बराबर ही लेवल होगा. अगर एफएमजी आपने पास कर ली तो सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम पास कर लिया, यू विल नो अबाउट इट. पर अगर आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, आपके मेंटर जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके लिए इतना कर रहे हैं, बाकी कोई करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ रही. दे ऑल आर हैप्पी विद द क्लासेस, दे हैव द बैचेस एंड ऑल. सो दोज ऑल आर अर्निंग ए गुड. मेरे को तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिना काम को फिर भी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ. गौतम नगर की क्लासों में जा रहा हूँ, टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरा काम है भी नहीं, पर मैं हर इंस्टीट्यूट के पास जा रहा हूँ. आई एम सो हैप्पी कि हर इंस्टीट्यूट फुल्ली सपोर्टेड है. सब लोगों ने एक रेस्पेक्ट वे में साथ में जाके क्लास को भी बोला है. और हम ट्राई भी करेंगे गौतम नगर से जितने इंस्टीट्यूट हैं, सब अपने अपने स्टूडेंट को वहां उस प्रोटेस्ट में लेके जाएं. पुलिस की परमिशन मिल जाएगी. ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन दे दी है. देयर इज नो इशू. स्टेज, ऑल अदर अरेंजमेंट वो सब मैं कर रहा हूं. आपको सिर्फ अपना एप्रिन उठाना है या व्हाइट टी शर्ट पहननी है और आपको सिर्फ वहां आ जाना है. आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिना पेरेंट्स नहीं आ सकते. You can bring your all friends or family member, which is they can come and speak loud. They can say directly कि हम लोग ये कर रहे हैं और ऐसा होने वाला है. This is I just request you. आज गुरु पूर्णिमा भी है और हम सब लोग आपको यही प्रे कर रहे हैं कि आप लोग इस बैटल में जीत जाएं और इसका रिजल्ट आपकी फैमिली और आपको मिले. और जो भी इफेक्टेड स्टूडेंट है वो आगे जाके अपने लाइफ में दे कैन डू इट बेटर. So we can feel proud, like at least you did it, and we can proud like once we did it for someone, some of our student. That's the our agenda is on this meeting. Yes, sir. एक लास्ट में एक शायरी में सुना देता हूँ कि मैं आजकल थोड़ा पढ़ने भी लग गया हूँ सर. अब ठीक क्या है, बढ़िया किताबें है. छोड़ दिया तो इरशाद, आजकल इरशाद. शायरी भाई. इरशाद, मिस्ट, इरशाद. बाइकाट, प्रेप लेडर ये सब मत करो. सब लोग आपके साथ में हैं. ये बाइकाट कर करके ही टीचर्स और इंस्टीट्यूट आपसे दूर हो रहे हैं. क्यों? उनको ये लगता है कि आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ में नहीं खड़े हैं, तो दे आर जस्ट मूव समवेयर कि भाई नहीं करना. हम लोग आपके साथ में क्यों खड़े हो, क्यों आपके साथ में रहें. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोस्टली टीचर और इंस्टीट्यूट खड़े हैं आपके साथ. अब 3 को आपको लगता है 3rd of August आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ. उसमें आपको लगता है कि someone not supporting you, then we can talk about it. But first you can support yourself, not blame someone like वो नहीं आए, ये नहीं किया. पहले तो यार आप 33,000 स्टूडेंट हो, उसमें से आप 5,000 स्टूडेंट भी अगर आप उस प्लेस पे पहुंच जाते हो तो मेरी गारंटी है इसका रिजल्ट देने का. क्योंकि
सर लोगों को थोड़ा एजेंडा अलग है, पर मेरा एजेंडा थोड़ा अलग है. आई कैन डू इट, आई नो बेटर हाउ वी कैन प्रोसीड दिस, बट एटलीस्ट यू नीड टू कम देयर. ऐसा नहीं ग्रुप में वैसे सर मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेरी क्या जरूरत है, मेरे तो 120 नंबर है, मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे. भाई अगर आपको 100 मार्क्स भी हैं और आपको अगर 10 मार्क्स भी इंक्रीज होके मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम यू हैव दिस ऑप्शन कि नेक्स्ट टाइम आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, रिजल्ट्स के साथ कुछ बेहतर लेके जा सकते हो. ऐसा नहीं 149 वाला ही आएगा, 140 वाला ही आएगा. एवरीवन, we are also going, some pass out student also going, doing internship, they are also coming. So are we trying to do this agenda on there? Media will be there, you can speak like आप लोग मेरे से पूछते हो, सर से पूछते हो कि हम लोगों को मार्क्स कम क्यों आए, क्या हुआ, हम इतना नहीं पढ़ पाए. बताओ मीडिया को, इतने नंबर से फेल हो गया, इतनी बार हो गया, सेम मार्क्स मेरे को नहीं आ रहे. चलो सर एक एक थोड़ा सा सुन लेते हैं. कई चेहरे हमारी हार देखने को तैयार बैठे हैं. एक दिन हम मुस्कुराकर उनकी उम्मीदों का जनाजा निकाल देंगे. थोड़े दिन और रुक जाओ जनाब, मजाक बना दूंगा उनका जो मुझे मजाक में ले रहे हैं. बढ़िया भाई. चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो थैंक यू सो मच सर. चलो मिलते हैं. If थैंक you यू. want to add something, you can add on there. Please be united. Please come and join us. Sir and all faculties member and all FMGs are coming there. So this is your show. You need to show it. Thank you, sir. Dr. Jitendra is also here. Yeah, please, Dr. Jitendra. We will be there and the whole team will be there and my all student will be there. And I am telling to the everyone in the, here in the Gautam Nagar and also in the Hyderabad and every coaching, I am requesting to the all, please come forward. And it's not about the like if you pass or not, if you like doing the job or not. It's about the you have to pay the respect toward the FMG fraternity. Yes. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इसमें ना ऐड 4 ही लोग हो सकते हैं. अंकित सर भी वेटिंग में थे और भगवान सर भी वेटिंग में थे, तो वो लोग अनफॉर्चुनेटली ऐड नहीं हो पाए. कर जाते हैं ना. अरे हम अरे सर मैं छोड़ देता हूँ, आप ज्वाइन करवा लीजिए प्लीज. 1 मिनट उनका ले लीजिए, मैं छोड़ देता हूँ. हाँ एक बार अंकित सर को करवा लीजिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. दिस इज द रेस्पेक्ट ऑफ फैकल्टी. नहीं आप दे दो उनको. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में हैं सब. हाँ सर. अंकित सर इज वेटिंग. यस सर, डॉक्टर अंकित सर को मैं अभी ऐड कर रहा हूँ. भगवान सर को भी मैंने ऐड कर दिया है. Just let's see, sir. Sir, what more thing we can add on this? I think the agenda is. Hi भगवान सर. हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो बढ़िया सर, बढ़िया. हेलो सर. भगवान सर तो जो है आज सर गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं. आप देख रहे हो पीछे चमक रहे हैं सब बैलून और सब. ये होता है लाइफ, मतलब स्टूडेंट्स का प्यार. सब लोग बैठे हुए थे सर, तो बच्चे आए हुए थे पुराने. ना पास आउट हो गए थे और करंट भी. हम लोग नहीं आ पाए. एक्चुअली आपने बुलाया नहीं पार्टी में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे हम आपकी पार्टी. नहीं, बच्चों ने ये सब किया हुआ था. बाकी नहीं वाला इशू सॉल्व हो जाए तो पार्टी कर लेंगे सब लोग मिलके. और एक बार ट्रांसपेरेंसी आ जाए एग्जाम में, बढ़िया पार्टी कर लेंगे सब मिलके. बिल्कुल सर. भगवान सर, यू वांट टू से समथिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग हियर? जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, 3 तारीख को सबको अपन को चलना है. जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आ सके. एक एफएमजी बच्चे के 5 दोस्त तो हो ही सकते हैं जो बिल्कुल खास होते हैं और जो उसके कहने पे आ सकते हैं. अगर एक बच्चा 5 बच्चे लेके आ गया ना, अपन ने वहां पर 2000 बच्चों की भीड़ रख दी ना, आप जो कहोगे वो गवर्नमेंट कर देगी. बस हमें भीड़ चाहिए. ऐसा ना हो कि पिछले बार की तरह हम पुलिस हमसे ज्यादा हो. ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए. कि फैकल्टी सारी वहां पर है. सर भी थे, जसवंत भाई भी थे, मैं भी था, आशीष सर भी थे और बच्चे बहुत कम थे. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर बच्चे वहां पर 2000 इकट्ठे हो जाते हैं ना सर, तो आप जो बोलो वो गवर्नमेंट कर दे. अभी अगर मैं कांग्रेस जनता पार्टी वाली बात करूं तो 5000 लोग होंगे ज्यादा, 10,000 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं है. जब 10,000 लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया, गवर्नमेंट हिल गई, तो हम लोग तो 33,000 हैं जो फेल हुए हैं. तो जब 10,000 इस चीज को चेंज कर सकते हैं तो 33,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं. अगर बच्चे उठ के आ गए ना, सब कुछ आप पे डिपेंड है बेटा. सब आपके लिए
ना ये जसवंत भाई खुद के लिए, ना सर खुद के लिए, ना मैं मेरे लिए, हम सब लोग पास हैं ऑलरेडी। ये सब आपके लिए, अगर आप लोग आ गए तो कोई भी चीज चेंज हो सकती है। आप यूथ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप आइए, मैं कह रहा हूँ 2000 बच्चे भी वहां पे पहुंचते हैं सर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। एक बच्चा 5 बच्चे लेके आ सकता है, और मुझे लगता है 430 बच्चे यहाँ लाइव देख रहे हैं, 2000 बच्चे आराम से लेके आ सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू कम विद योर 5 of your friends, Yeah. so that our for example students gathering should be around 2000, at least 2000 लोग हमें चाहिए सर वहां पर, अपने इस प्रॉब्लम को एक जनरलाइज प्रॉब्लम दिखाने के लिए। 100, 200, 300, 500, 500 इनकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा। इस देश में 145 करोड़ में अगर 500 लोगों के साथ प्रॉब्लम है, उसको कोई नहीं सुनेगा। आप आइए, 2-3 हजार लोग आइए, हर कुछ होगा, हर चीज पॉसिबल है। जो आप मांगोगे वो मिलेगा, बट आना आप सबको पड़ेगा, तभी पॉसिबल है दोस्तों। 415, 420 बच्चे लाइव यहाँ पर हैं। एक बच्चा 5 बच्चे लेके आए अपने दोस्तों को जो FMGs हैं, चाहे वो पास आउट है या पास आउट नहीं है, या जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप आइए, काम हो जाएगा। माहौल बहुत सही है इस टाइम पे, बहुत अच्छी हवा चल रही है। गवर्नमेंट पे ऑलरेडी प्रेशर है, गवर्नमेंट और बिल्कुल नहीं चाहती कि कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो। 2000 की गैदरिंग आप समझ रहे हो, 2000 ह्यूज नंबर होता है। 2000 आप आइए, 1000% होगा। मैं तो ये कहूंगा, हर एक बच्चा बस कसम ले ली कि मुझे 5 दोस्तों को लेके चलना है, पर ऐसे नहीं कि भाई आजा, नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि नहीं भाई साथ में चलना है, साथ में चलना है। अगर साथ में आ जाओगे तो काम हो जाएगा दोस्त। लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। हम खड़े हो सकते हैं, हम बाकी चीजें अरेंज कर सकते हैं, पर अगर आप लोग खुद खड़े होके वहां नहीं आए तो हमारा खड़ा होना बर्बाद है। हमने जो इतना दिन दिया, मैंने इतना समय दिया, हम लोगों ने, सब वेस्ट है। फिर कोर्ट के डिसीजन पे बैठे रहो। अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स, भाई ग्रेस मार्क्स चाहिए तो आना पड़ेगा, लड़ाई लड़ो। 2000 आओ, 3000 आओ, उसके बाद में ग्रेस मार्क्स जो आप बोलोगे ना, उतने दिन के लिए उतनी अच्छी रिजल्ट्स की बातें करेंगे, अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर एक बार FMG मेडिकल का ऐसा इतिहास बना दो कि जब लोग वहां खड़े हों, लोग आपको देखें और सुने, तो सरकार को लगे कि ये एक छोटे या हमारे वो अलग बच्चे नहीं है, ये इस देश के बच्चे, और इनकी जायज जो ये मांग रहे हैं वो वैलिड पॉइंट के साथ में। हम कोई अनवैलिड चीजें मांग ही नहीं रहे। हम ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, हम स्कोर कार्ड मांग रहे हैं, हम आंसर शीट मांग रहे हैं, और वीडियो क्वेश्चंस की वजह से जो बच्चे फेल हो गए, जिनको एग्जाम में दिक्कत हुई, एग्जाम सेंटर फेयरनेस मांग रहे हैं। 7000 रुपए देके भी अगर हम ये चीज नहीं मांग सकते और नहीं कह सकते, तो फिर हमारा FMG होना या हमारा कुछ करना। बच्चे स्टाइपेंड हो या कोई भी हो, भाई आप सब लोग आ जाओ, मुद्दा एक ही है, FMG का मुद्दा है। सारे मुद्दे रखे जाएंगे, हर मुद्दे पे बात होगी, पर उसके लिए आना पड़ेगा, चाहे आप राजस्थान, बेंगलोर। बहुत सारे बच्चे जो टिकट करा के आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, वो लोग भी तो स्टूडेंट ही है ना यार, उन लोगों के पास भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। और आप जो पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि हमारे 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे, भाई ना 2 दिन वेस्ट होने वाले हैं। आप वैसे भी जिस दिन अगर प्रोटेस्ट होगा, सारे दिन ऑनलाइन बैठे रहोगे, लाइव देखोगे कौन अभी लाइव आ रहा है, कौन क्या वीडियो डाल रहा है, बस यही देखोगे। तो इससे बेटर है कि वहां लाइव जाके खड़े होके अपनी बात को रखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरा तो एक ही बार बार यही रिक्वेस्ट है, और बार बार सभी लोगों को जोड़ने का, जाने का, उनसे मिलने का एक ही रीजन है। आपको MP चाहिए, MLA चाहिए, भाई सब आएंगे। आप एक बार खड़े तो हो जाओ। उनको दिखाऊं क्या, कि भीड़ क्या दिखाऊं उनको, कि कोई है ही नहीं, बात करने वाला ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो वो लोग आके अपनी वो रेपुटेशन को डाउन नहीं करेंगे। अगर आपको एक नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाना है, क्योंकि अभी राज्यसभा में चला था, लेकिन राज्यसभा में एक मुद्दा उठा था, अगर आपने किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, राज्यसभा में उठा है ये FMG का मुद्दा। उससे पहले न्यूज में भी चल रहा है। अभी 3 अगस्त का हमने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, तो लॉट ऑफ जो है न्यूज चैनल और मीडिया सब लोग डिमांड कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सबको डिनाई कर दिया। टिल 3 अगस्त हम किसी से नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं रखेंगे। 3 अगस्त को हम अपनी सारी बातें रखेंगे। तो जस्ट यू नीड टू कम एंड ज्वाइन। और जो आपको कह रहा है नेगेटिव कि नहीं होगा, ये होगा, वो कहते रहेंगे। जिस दिन हो जाएगा उस दिन उनके पास जवाब नहीं होगा। तो एक बार आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद चले जाओ। गौतम नगर में इतना बच्चा है, अगर ये भी उठ के वहां चला जाए तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैदरिंग। जयपुर दूर नहीं है, आसपास के एरिया के सारे बच्चे आ सकते हैं, और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इतना तो आ ही सकते हो यार। 6 महीना बैठोगे, उससे बेटर है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैं अभी जाके अपना टाइम दे दूं, और 2 दिन अगर आपने दे दिए
तो कुछ नहीं जाएगा, नो वेस्टेज, आई एम टेलिंग यू। 2000 लोग आ जाओ, उसके बाद में मेरा काम है आपको न्याय दिलाना। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही सही कह रहे हैं सर आप। 2000 लोग इनफ रहेंगे। और दोस्तों एक और चीज क्या है, जैसे अभी मैं कुछ मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि इतने बच्चे तो गौतम नगर में ही है। आप किसी के भरोसे मत बैठो बेटा कि गौतम नगर में बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, आप खुद आओ भाई। गौतम नगर वाले आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कुछ नहीं पता है भाई किसी का। आप खुद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि 400 बच्चे यहाँ लाइव देख रहे हैं, हर बच्चे को 5 बच्चे लेके आने हैं। गौतम नगर में तो 10,000 बच्चा है, गौतम नगर में तो पहले भी बच्चा था, लेकिन नहीं आ रहा है ना बच्चा। तो आप किसी के भरोसे मत बैठो कि मैं जयपुर हूँ, मैं नहीं आऊंगा, गौतम नगर वाले आ जाएंगे। नहीं भाई, आपको जयपुर से उठ के आना है, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे, आप आइए। आएंगे तभी होगा, किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि गौतम नगर में इतने बच्चे हैं, वहां इतने बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको खुद को आना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये हम लास्ट चांस है अपने पास। अगर इस बार बच्चे सर इकट्ठे नहीं हुए तो ना आप हिम्मत कर पाओगे, ना मैं हिम्मत कर पाऊंगा, ना सर आप हिम्मत कर पाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और फिर हमेशा के लिए एफएमजी का मुद्दा कोई भी नहीं उठाएगा, क्योंकि जब दोस्तों आप लोग ही साथ नहीं होंगे तो फैकल्टी कितना साथ देगी। सबसे पहले आप सबको आना है, तभी हमें स्ट्रेंथ। 9 जनवरी को डॉक्टर साहब सभी एग्जाम देने जाएंगे, तब भी तो लोग जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो आप ही समझ लो 3 अगस्त को आपका एग्जाम है, ये भी एक एग्जाम ही है लाइफ का। लाइफ का अगर एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए अगर आप नहीं आए तो आपको 9 जनवरी को एग्जाम देने में क्या डिफिकल्टी होने वाली है, क्या होगा, नो वन आइडिया। अभी नहीं कर सकता। अभी संदीप सर भी कह रहे थे, सभी फैकल्टी कह रही थी कि एग्जाम पैटर्न को कोई भी कुछ भी कर सकता। अभी की बार वीडियो दिया, अगली बार ऑडियो दे देंगे, फिर क्या करोगे? क्वेश्चन पैटर्न तो उनके पास ही है। सर कह रहे थे अभी थोड़े 50 क्वेश्चन भी अगर आ गए, 50 क्वेश्चन भी एम्स का टॉप एचओडी या मास्टर उस चीज का स्पेशलिस्ट वो भी सोल्व नहीं कर सकता अगर पेपर बनाने पे आ जाए। तो आप लोगों को अपनी चीज के लिए, अपने स्क्रीनिंग एग्जाम को क्लियर दिखाने के लिए कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, हमें इससे कोई सीट नहीं मिलने वाली, इससे हमें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, इससे सिर्फ हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे जाके हम प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते, दैट इज टोटली डिफरेंट। बट दिस टाइम ओनली दिस इज द स्कैनिंग एग्जाम, और स्क्रीनिंग एग्जाम जैसा ही होना चाहिए। उसका वेटेज जो बनाया हुआ है पुराना, आज तक जो पुरानी गाइडलाइन है वो चेंज क्यों नहीं हुई? उन पुरानी गाइडलाइंस को चेंज इसलिए नहीं हुई, कोई आवाज ही नहीं उठाया। तो इस बार आप लोगों को एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है। ऑल फैकल्टी, ऑल टीचर्स, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर विद यू, सो प्लीज ग्रैब दिस चांस, डोंट वेस्ट दिस चांस। अगर इस बार आपने नहीं किया, आई एम डैम श्योर मैं नहीं आया तो बाकी लोग वैसे भी नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने सबसे रिक्वेस्ट कर करके आप लोगों के लिए इतना सब किया है। सारे टीचर्स भी जानते हैं कि आप खुद ही स्टैंड नहीं करते, इसलिए वो लोग आगे नहीं आते। अब मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप सब लोग आ रहे हो, इसलिए सारे टीचर, सारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। अगर फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आई एम डैम श्योर आगे से आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। भाई पिसते रहना, हम तो चल दिए, ये लास्ट वादा है मेरा। लास्ट पीआईएल कोर्ट का जो रिजल्ट आया है वो कोर्ट पे रहेगा, क्योंकि आप लोग इस पे स्टैंड नहीं किए तो मैं फिर कोर्ट पे, और क्या है वो दे देगा जो भी जजमेंट देगा। प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो जजमेंट तो अनफेयर ही आएगा, आई एम टेलिंग। बिल्कुल सर। एंड एक बार ना अगर हम स्ट्रेंथ और यूनिटी दिखा सकते हैं तो इसके बाद कोई भी हमें हल्के में नहीं ले सकता है। सो इवन इफ दे वांट टू मेक सम मेजर चेंजेस इन द फ्यूचर, वांट टू एनफोर्स ऑन इट, they have to be in consultation with the students, they should inform well in advance, and तभी फिर patterns वगैरह change कर सकते हैं। But if we do not show the strength, तो then they are totally free, तो अपने मर्जी के हिसाब से कभी भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं। सो एक टाइम हमें स्ट्रेंथ यूनिटी दिखाना पड़ेगा, एंड स्ट्रेंथ एंड यूनिटी का बेस्ट साइन है नंबर्स। इफ यू डोंट गेट द नंबर्स देन इट्स अ बिग फेल्योर। सर आना तो पड़ेगा, मैं खुद अभी लगभग 500 किलोमीटर दूर से आऊंगा। टू ज्वाइन आरोप साहब, जल्दी से बात करेंगे क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंथी टाइम कर दिया हम लोगों को, उनको नहीं देखो सर, बात ऐसी है, आना पड़ेगा। देखो अनफेयर अगर हो रहा है, अगर हम ही खड़े नहीं होंगे एज अ स्टूडेंट, अगर मैं ही अपने लिए खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं खुद 500 किलोमीटर से दूर चल के आऊंगा यहाँ पे रात को कि हाँ भाई चलो चलते हैं वहां पे ये करेंगे। अगर आप नहीं आओगे तो कौन ही खड़ा होगा? आप भी कितनी बार ही खड़े होंगे, जशवंत भाई कितनी बार खड़े होंगे, डॉक्टर भगवान कितनी बार ही खड़े होंगे हमारे लिए, है ना? हर बार आगे रहते हैं, धूप के अंदर रहते हैं। एटलीस्ट आ जाओ, आके खड़े रहो, बस एक बार सपोर्ट दिखा दो कि हाँ हम यहाँ पर हैं।
रिले बनाने से या स्टोरियां लगाने से चीजें नहीं चलती हैं। आपको यू हैव टू बी देयर। अगर आपका देखा जाए तो अपने इसमें हरियाणा से हो गया, यूपी से हो गया, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे तो आ सकते हैं। कितनी देर के 2-2 3-3 घंटे के रास्ते हैं, सेम डे आके सेम डे भी वापस जा सकते हैं। करते ही नहीं है। बस इस बार गाइज होना ही है। भगवान सर तो 5 कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ अपने साथ जितने भी सारे लेके आओ। ठीक है, वी नीड टू शो देम कि हाँ हम भी हैं, हम भी इंसान ही हैं, हम भी इंडिया के हैं, हम भी एफएमजी का पेपर निकालते हैं, हम भी डॉक्टर हैं। ठीक है, हमें भी इक्वली सारी चीजें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सब और सबको मिल रहा है, हमें तो बिल्कुल एकदम ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह रख रहे हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें उस चीज के लिए एक बार तो स्टैंड होना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्त, सही कहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कहा है आपने। ठीक है सर, तो ठीक है मैं सर, तो आ रहा हूँ थैंक यू 3 सो तारीख मच। को। 3 तारीख को I'm मिलते also हैं। joining, guys. जी बिल्कुल सर, हम भी आ रहे हैं। हम नहीं आ रहे, हम सब आ रहे हैं और आप बिल्कुल, सब सब लोग आ भी रहे आ हैं। रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं। मेरा ये मानना है हम सब लड़ेंगे और सब जीतेंगे, पर आप सब लोग खड़े होंगे। मुझे ये भी बिल्कुल वादा सर। है, मुझे पता है कि नेगेटिविटी चलती रहती है लाइफ में, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट आएगा, आपको छुपने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर हमने, हमारी फैमिली ने थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि हम बाहर जो है अपने आप को शो कर रहे हैं, वी आर पास। भाई आप पास हो। आपको एक्चुअली में इस एग्जाम में फेल नहीं किया गया, जानबूझ के फेल किया गया। आप पास, मार्किंग 150 पे नहीं हुई, आपकी मार्किंग 160 170 पे जाके हुई है। तो आपका कहीं भी दोस्त नहीं है। यू आर नेवर फेलियर, आई एम टेलिंग यू। यू आर द वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली इंडिया में, पर बाहर जाके आपने अपने आप को और बेस्ट साबित किया, एंड देन यू कम इन इंडिया एंड पासिंग दिस एग्जाम। सो यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। नेवर थिंक अबाउट इट लाइक यू आर फेलियर। यू आर नॉट फेलियर, सिस्टम इज फेलियर। सिस्टम फेलियर है, इस वजह से आपका वो रिजल्ट नहीं आ रहा। सो बी पॉजिटिव एंड बी यूनाइटेड। बाकी आप लोग आ जाओ, हम लोग सब मिलके बहुत अच्छे से इस प्रोटेस्ट को करेंगे, पीसफुली करेंगे। कंट्री की रेपुटेशन को मानते हुए एज ए डॉक्टर्स के बीच में हम ये मैसेज देंगे कि एक डॉक्टर प्रोटेस्ट करता है तो दे आर हाउ मच साइलेंट और हाउ काइंड ऑफ एजुकेटेड दे आर, कि वो उनको प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। तो वी विल शो देम दिस वन ऑल्सो, जिसको लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच ओके सर। once again. Thank you all, Best guys. of luck and be united. Keep in touch. Bye bye. बाय बाय। Bye-bye.